Assalamu alaikum and good morning, honorable dignitaries and most valued guests. With high spirit and somber mood, we are celebrating India's 74th Independence Day today. We gained freedom on 15 August 1947. So, happy Independence Day and a very warm welcome to everyone present here. गुजारिश है इन हवाओं से आज जरा तेज बहे, गुजारिश है इन हवाओं से आज जरा तेज बहे, बात मेरे देश की शान तिरंगे के लहराने की है। और अब मैं इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए अब्दुल हन्नान को बुलाना चाहूंगी, वो आए एंड लेट्स बिगिन द प्रोग्राम विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदकल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah Abdul Hanan. Our flag, our tricolor honor those who have fought to protect it and reminder of sacrifice of our nation heroes. Netaji Subhash Chandra Bose explained the desire to die for making India live. He inspired each citizen of India to fight for the freedom from the British government. Independence Day is a national celebration of India that we celebrate to remember the struggle and sacrifice for our martyrs for a long span of 200 years. Every single India is filled up with this perfect courage as we stand together to put up a determined fight for an unprecedented life-threatening disease, such as disease with such a vast magnitude, with valiant corona warriors all along the country. At the same time, our valiant soldiers are safeguarding our frontiers from vigilant neighbors. Let's salute these Indians who have not let the spread of true Indian down in these testing times. As it is often said, the best way out of difficulty is through it. So protect yourself and others from the spread of coronavirus disease, also called as COVID-19. Stay home and stay safe and self-isolate even with minor symptoms. I feel that it is a responsibility of every citizen to rise and make this country is strong in all aspects. So let's begin us be one, united we stand, divided we fall. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. Let us start with first performance with a beautiful poetry for which I am inviting Sidra Khan for presenting her poetry on this occasion. अस्सलाम वालेकुम, मैं सिद्रा बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के जवान स्वर्गीय जनरल मुकेश सभरवाल जी की लिखित कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, फिर गम में डूबे शहरी क्यों, बेचैन ना हो मायूस ना बन, सरहद पर सेना बैठी है, मासूम की जाने ले लेकर आतंकी सीना तानते हैं, लाचार हैं वो, दुश्वार हैं वो, सद्बुद्धि कहीं गवा बैठे, जिस पर गोली बरसाते हैं वो भी अल्लाह की नेमत है। फर्क सिर्फ बस इतना है वो जन्मे घर पड़ोस में है, जब जब दुश्मन ललकारा है तब तब उसको पछाड़ा है, घर आंख उठाकर वो देखें उसे नैन मुक्त करा देंगे। ये सेना हिंदुस्तान की है,
चाहत केवल बलिदान की है। तुम सो सको सुख चैन के संग, जिम्मा संभाले सैनिक हम। रात तनिक लंबी तो क्या, सुबह अभी आनी है। बेचैन ना हो, मायूस ना बन, सरहद पर सेना बैठी है, सरहद पर सेना बैठी है। थैंक यू। Thank you, Sidra. It was such a nice poetry. Now moving on to the second program, I would like to call Sabiha Shah for English speech. Thank you, Anam. Good morning to the respected principal, teachers, and my dear friends. My name is Sabiha Shah from B.Ed second year. First of all, I would like to wish you a very happy Independence Day. Today, we are here to celebrate the Independence Day of our nation. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947, we got independence from the British rule. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Abdul Kalam Azad, Sarojini Naidu, Begum Hazrat Mahal, Ashfaqullah Khan, and many others devoted their entire life for the independence of our country. Their sacrifice can never be forgotten. We are fortunate that we are born in an independent country, and that's why we have our own fundamental rights. We can now speak against the evil without fear. Here I discuss about Ashfaqullah Khan, Sarojini Naidu, and Bhagat Singh. Ashfaqullah Khan. Ashfaqullah Khan, an Indian freedom fighter, was sentenced to death along with Ram Prasad Bismil for the Kakori train robbery, commonly known as the Kakori Conspiracy of 1925. Strong enemies of the British Empire, both Khan and Bismil are remembered together for their contribution to the Indian independence motivation. Now come to the Bhagat Singh. Bhagat Singh was a revolutionary who fought against the British rule and laid down his life in the freedom struggle. He is considered to be one of the most influential revolutionaries of the Indian independence movement. Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was an Indian political activist and poet, a proponent of civil rights, women's emancipation, and anti-imperialistic ideas. She was an important figure in India's struggle for independence from colonial rule. Naidu's work as a poet earned her the sobriquet Night Angel of India by Mahatma Gandhi. At last, I would like to say that we are proud to be an Indian and our country is the best. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Sabiha. Let us now move to our next program, which is going to be a musical presentation. You know, music gives soul to universe, wings to mind, flight to imagination, and life to everything. So put your hands together for a patriotic song by Maria Aziz of B.Ed second year. Again, Assalamualaikum. I am Maria Aziz from B.Ed second year student. On this occasion, Independence Day, I would like to present a patriotic song for all of you. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी।
संगीन पे रख कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य वो उनकी जवानी, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को मार गिराया। जब अंत समय आया था, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वे दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Maria. It was indeed a perfect song. With one sentiment, I would like to further कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। Now let's spoke further with Urdu speech going to present by Ifat Afsar of B.Ed second year. Assalamu alaikum. My name is Ifat Afsar, B.Ed second year student. दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। इज्जत माँ, प्रिंसिपल, असातिज़ाए कराम, तलबाए तालिबात और इस तकरीब में मौजूद मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंतजामिया की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की खूबसूरत तकरीब में मुझे कुछ फरमाया। अगस्त यानी यौम आज़ादी, 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। ये आजादी हमें कई कुर्बानियों के बाद हासिल हुई। जद्दोजहद आजादी भी एक तवील तारीख रखती है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अवध के नवाब शजाउद्दौला मुगल बादशाह आलम मुत्तहिद होकर अंग्रेजों के मद्दे मुकाबिल खड़े हुए।
लेकिन बक्सर की जंग में अंग्रेजों की फतह हुई और 1957 की जंग आजादी ने भारत की तहरीक आजादी में नई रूह फूंकी। टीपू सुल्तान, सिखों और मराठों ने भी डटकर मुकाबला किया, लेकिन ताउन न मिलने की वजह से कामयाब ना हो सके। इसका नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों को एक तवील मुद्दत तक हुकूमत करने का मौका मिल गया। वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अंग्रेजों के बढ़ते हुए जुल्मो सितम और एहतसाल से भारत की आवाम परेशान हो गई और मुखालिफत का शोला भड़क उठा। एक तवील कोशिश के बाद मुल्क के हर गोशे में आजादी का जज्बा परवान चढ़ा और कायदीन ने बेशुमार कुर्बानियां पेश करते हुए मुल्क को आजादी दिलाई। हिंदुस्तान में बसने वाले हर शहरी ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत के लिए कुर्बानियां पेश की। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, तुमको रहना है कयामत की सहर होने तक। आज के खुशी के इस मौके पर हम खुलूस व मोहब्बत आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, डंडे लाठियां खाए और कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस देश की आजादी के लिए निछावर कर दिया। आजादी की लड़ाई के इन मतवालों में महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और वल्लभ भाई पटेल, इन सभी मुजाहिदीन ने आजादी और आवाम की जद्दोजहद को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा किया। इन तमाम लोगों की कोशिश का नतीजा है कि आज हम आजाद हिंदुस्तान के शहरी कहलाते हैं। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा था, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। आज हम हमारे अजीज मुल्क भारत हमसे मिलकर आज ये अहद करेंगे कि हमें इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश करना होगी। लोगों के दिलों से फिरका परस्ती, कौम परस्ती को दूर करना होगा। दिलों से निफाक को दूर करके अपनाइयत और मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद और भाईचारे का जज्बा पैदा करना होगा। इस तरह वो दिन दूर नहीं जब हमारे मुल्क आलमी ताकत बनकर उभरेगा। इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है नाम आजादी का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। It was such a motivational speech given by Ifat Afshar. Thank you, Ifat. If everyone starts performing his duty religiously, then surely we can achieve India of our dream. Going forward, I request Bushra Masroor for her poster presentation. Assalamu alaikum to everyone. First of all, I would like to wish all of you a very happy Independence Day. I am Bushra Masroor, student of B.Ed second year, and today I participated in the poster making, and here it is my poster. Bushra, can you please explain your presentation? Yes, it is depicting our freedom fighters who participated in the it is depicting our freedom fighters. It was indeed a beautiful presentation that touched everyone's hearts. Now I am inviting Bushra Masroor of B.Ed second year for her inspirational speech. आदरणीय अध्यापक गण, यहाँ उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग।
मैं बुशरा मसरूर बीएड सेकंड ईयर की छात्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबके समक्ष अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस वर्ष भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजाद हुआ था। इस दिन को हम सभी भारतवासी बहुत ही उत्साह और गौरव के साथ मनाते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हम सब के उत्साह में कोई कमी नहीं है। 15 अगस्त हमेशा हमारे लिए इतना खास रहा है कि इस दिन हम अपने देश की सारी महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन से भारत की आजादी को दर्शाता है, बल्कि ये इस देश की शक्ति और एकता को भी दिखाता है। इस दिन कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता, बल्कि भारतीय झंडे को हवा में लहराते हुए देखकर एक ही आवाज कान में गूंजती है कि हम सब भारतीय हैं। अखंडता में समानता का प्रतीक भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास दिन को हम और खास बना सकते हैं जब हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाया। इस विषय में सबसे पहला नाम मैं महात्मा गांधी का लेना चाहूंगी, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। इन्होंने दांडी मार्च का प्रसिद्ध नारा दिया। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। इस मार्च को दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों में एक और महासेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थे। इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया। स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता, पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले पहले नेता बाल गंगाधर तिलक, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये पंक्ति 1917 में नासिक की भरी सभा में बोली थी, जब वे अपने 6 साल के कारावास काटकर आए, तो उनका सबसे पहला नारा यही था। इसी तरह मैं कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लेना चाहूंगी, जिसमें उधम सिंह, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी तात्या टोपे, गोपाल कृष्ण गोखले, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव थापर, अशफाक उल्लाह खां, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद आदि, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की सभी उपलब्धियों को याद करते हैं, हम अपने सैनिकों को न भूलें। हमारे बहादुर सैनिकों के लिए धन्यवाद कि हम उनके कारण अपने देश में शांति से रह सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगी और आप सबको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। जय हिंद। Thank you, Bushra. थैंक यू। Now may I request our respected principal ma'am to come here and present her views on today's occasion. Well, Assalamu alaikum and very good morning all of you. Wish you a very happy Independence Day. आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और first of all, I'd like to congratulate Shagufta ma'am and the whole team for organizing this program virtually, and it's really nice that you have come up with this program. The presentations were also very nice. I hope this day could ignite our minds and brain and heart as well with patriotism, क्योंकि पेट्रियाटिज्म का वही वाला मसला है कि जिस वक्त उन लोगों ने स्ट्रगल किया, उन लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस किया और ये दिन आज हम लोगों को देखने के लिए मिला है। लेकिन आज का दिन हम सिर्फ इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम उन लोगों को एक तो ना भूलें जिन्होंने हमारे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए। We keep
reminding them again and again every year on this day, so that our younger generation could also not forget them. और दूसरा मकसद हमारा इस दिन को मनाने का ये होता है कि हम अपने अंदर पेट्रियाटिज्म को जिंदा रख सकें। उस वक्त की ज़रूरियात जो थी पेट्रियाटिज्म के लिहाज से अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करना था, स्ट्रगल करना था। आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, प्रेजेंट डे पर्सपेक्टिव ऑफ पेट्रियाटिज्म इज टोटली डिफरेंट। Nowadays we have to be a very responsible citizen to keep this day memorable। और हमारी जो जिम्मेदारी बनती है आज के दिन पे वो यही है कि हम लोग आज अपने देश के लिए हमें जान कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी लाइफ्स और अपनी फैमिली सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो ये है कि हम अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। जिस हिसाब से कम्युनलिज्म प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी में, उसको अपने हद तक रोकने की कोशिश करें। वी नीड नॉट बी कम्युनल बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, कंट्री, और उस मल्टीकल्चरलिज्म को हमें जिंदा रखना है। हमें जितना मजहब प्यारा हो उतना ही दूसरे का भी मजहब प्यारा हो, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। और यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली जो है वो ये है कि we should not expect things from others, rather we should start it from our side. Be in line, be the first one to make the cue. Just be the change you want to see in the society. That is it should be the motto. आप जो चीजें देखना चाहते हैं सोसाइटी में प्रिवेल करते हुए, आप चाहते हैं कि कम्युनलिज्म ना हो, आप अपने लेवल से उसको इराडिकेट करने की कोशिश करें। आप चाहते हैं इक्वालिटी हो, आप उसको अपने लेवल से प्रिवेल करने की कोशिश करें। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, आप अपने देश के लिए जो कर सकते हैं वो आप अपने लेवल पे करें। डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द होल सोसाइटी कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्यों। हमारा ये काम नहीं है कि हम वक्त अपने आप को दूसरे से कंपेयर करें। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज with our own work and whatever we are going to do। हमारी जिम्मेदारी दूसरे लोगों का हर वक्त मुहासबा करना नहीं है कि लोग दूसरा क्या कर रहा है। हम दूसरे के कंपैरिजन अगर हम करते रहेंगे तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम लाइन में खुद खड़े हो जाएं और फिर उसके बाद पीछे लाइन बनती चली जाएगी इंशाल्लाह। तो हमें आज के दिन पे सिर्फ यही अपने अंदर पेट्रियाटिज्म के तौर पे अपने अंदर जो चीजें रिवाइज करवानी है वो यही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, हम अपने काम को अच्छे से करें, हम करप्शन ना फैलाएं, हम कम्युनलिज्म का पार्ट ना बने, हम उन चीज़ों को प्रिवेल करें जो हमारे एक इंडिपेंडेंट इंडिया की एक सोल है, सॉवरेनिटी, ब्रदरहुड, है ना, सेक्युलर। ये सारी चीजें हम अपने दिमाग में बिठाएं, हम अपने घरों में, अपने सोसाइटी इन द सेंस अपनी जिस जगह हम रह रहे हैं उसमें उस चीज को अपने तौर पे लागू करने की कोशिश करें। और डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दैट इज द ओनली मैसेज दैट आई हैड टू गिव यू। एंड बीइंग टीचर्स, हम लोग की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोग फ्यूचर टीचर्स हैं, तो आप लोगों को उस लिहाज से थोड़ा सा अपने आप को ब्रीफ करना है कि हम लोग अपने अंदर जब वो चीजें पैदा करेंगे, एंड वन थिंग इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन योर क्लासेस, दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। जो चीजें हम बोलते हैं ना, उससे ज्यादा इस चीज का फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके एक्शंस ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप जो करते हैं वो ज्यादा लोगों को दिखाई देता है। तो हम अपने एक्शंस को रिफॉर्म करें, हम अपने काम करने के तरीकों को रिफॉर्म करें, और जिस तरह का बदलाव हम देखना चाहते हैं उस तरह का बदलाव हम अपनी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। And in that sense, we have to be more responsible, more accountable for our own means task। जो हमें हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करते रहें, दूसरे लोगों का हर वक्त पीछा करना छोड़ दें। और सिर्फ यही एक मैसेज है मेरा आज के दिन के लिए, आप लोगों के लिए, कि आज हम लोग इसी सेंस में पेट्रियाटिक हो सकते हैं। ना हमें अपनी जिंदगियां कुर्बान करने की जरूरत है, ना हमें अपनी जो है अपनी फैमिलीज को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। सिर्फ सैक्रिफाइस करना है तो अपने
अपनी खराब सोच को सैक्रिफाइस करना है, अपने खराब रवैयों को सैक्रिफाइस करना है, वो चीजें जो हमारे दिलों में हेट्रेड और ये सारी चीजें जो हमारे अंदर पनप रही हैं और जिसका मुजाहरा टाइम टू टाइम होता रहता है, उन सब चीजों को अगर हम सैक्रिफाइस करके दीन और दुनिया के लिहाज से अपने आप को बेहतर बनाएं और एक अच्छा सेक्युलर इंडिया का को जिंदा रखने की कोशिश करें, दैट वुड बी द ओनली tribute that we can pay to all the freedom fighters today. And thank you all for organizing such an event. Thank you so much, ma'am. It was rightly said by ma'am that the need of dedicated step to inculcate moral values in our life. Thank you, ma'am. Last but not the least, with one sentiment, I would like to end up the program because of the shortage of time. न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में. Now I would like to call Sidra Khan for vote of thanks. Assalamu alaikum to everyone. I, Sidra, on behalf of Al Barkat Institute of Education and entire fraternity of this institution, first of all, extend my most sincere thanks to Allah Ta'ala for making this event such a success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. On behalf of B.Ed second year, I extend a really hearty thanks to our principal, Dr. Samina Fasli, who spared time from a busy schedule to grace this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts that will surely are going to encourage us in our future events. Your thoughts have enlightened us, our minds, and have shown us a new path. Also, I would like to thank Shagufta ma'am for being catalyst that stimulated us to do our best and standing as a pillar of strength. Now, I would like to thank all the participants for their beautiful performances that made this event a joyful one. Your days of hard work were evident in your acts. Last but not the least, a big thank you to everyone who joined this meeting and made this glorious day a memorable one. Thank you so much and happy Independence Day to everyone. Thank you.